Hello viewers, today I am going to discuss about the Chow-Fasman algorithm for the prediction of 2D structure of the protein. This method was given by two scientists Peter Y. Chow and Gerald D. Fasman in early 1970s. 2D structure of the protein exists mainly in two states. One is helix, that is represented by spiral shape structure, and another one is beta sheets that are represented by arrows. There are some small segment of amino acids that behaves as connecting link. These are termed as coils. So Chow-Fasman use three states to predict 2D structure of the protein. One is helix, another one is sheets, and last one is coils. Chow-Fasman method is based on relative frequencies of each amino acids. Relative frequencies of each amino acid, and these relative frequencies were based on the known protein structures that were determined by X-ray crystallography. At the time of Chow-Fasman, there were only 15 proteins known at that time. So 15 proteins only known at that time. So what they did, Chow and Fasman took these 15 proteins as their data and performed analysis of relative frequencies of each amino acid to be found in one of these three states: helix, sheets, or coils. Chow-Fasman uses the abbreviation H for helix, E for sheets, and C for coils. There are mainly two concepts in Chow and Fasman method. One is the concept of propensity and another one is of nucleation and termination of amino acids. So what do you mean by propensity? Propensity is the tendency of a particular amino acid to be found in either of these states, such as helix, coil, or sheets. So propensity, we can understand the concept of propensity as the probability, but we cannot use the term probability over here because probability has some rules, as probability value cannot be more than 1 or less than 0, but propensity score can be more than 1. So propensity is the tendency of occurrence of any amino acid in a particular form. Propensity. So there is a formula of propensity, that is frequency of any amino acid to be found in any of the state, whether in helix or in sheet or in coil, divided by frequency of total amino acids present in the sequence that in a particular form. So we can use this formula as x upon m divided by y upon n. We can use any of the variable here, not only x, m, y, and n. So let's understand the concept of propensity in detail. Suppose we have a protein sequence of a particular length. Suppose these are the proteins. And so on. So
if I am saying what is the propensity of M to be found in helix, मतलब कितने चांसेस हैं मिथ्योनिन के हेलिक्स में होने के। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था तो उसमें मैं बताऊंगी कि प्रोपेंसिटी ऑफ मिथ्योनिन टू बी फाउंड इन हेलिक्स, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको। सो टोटल नंबर ऑफ मिथ्योनिन कितने हैं इसमें, जो कि 1 2, यहाँ पर 2 है, ठीक है, और भी ले सकते हैं। सपोज वी हैव 4 एंड इन 4 मेथ्योनिन में से कितने मेथ्योनिन जो हैं वो हेलिक्स फॉर्म करेंगे ये, एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अमीनो एसिड जो हैं इस सीक्वेंस में है, और इन 12 में से कितने अमीनो एसिड जो हैं वो हेलिक्स फॉर्म करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे सपोज 8। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मेरे को कैसे पता चल रहा है कि इसमें से 2 अमीनो एसिड जो हैं मिथ्योनिन के वो हेलिक्स फॉर्म करेंगे और कौन से अमीनो एसिड जो हैं वो हेलिक्स फॉर्म करेंगे। तो मैंने आपको बताया अभी कि चार्न फासमैन ने ऑलरेडी एक प्रोपेंसिटी स्कोर टेबल बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने 20 अमीनो एसिड्स नोन थे उनके टाइम पर, तो उन्होंने सारे के सारे अमीनो एसिड्स को लिखा हुआ है यहाँ पर, और हेलिक्स में आने का क्या स्कोर रहेगा, शीट्स में आने का क्या स्कोर रहेगा, और कॉइल्स में आने का क्या स्कोर रहेगा वो ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। सो देयर आर सम पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच वी कैन से कि ये वाला अमीनो एसिड हेलिक्स बनाएगा, ये वाला अमीनो एसिड शीट बनाएगा, या ये वाला अमीनो एसिड कॉइल बनाएगा, ठीक है। अब देखो 20 अमीनो एसिड है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि 100% कोई एक अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ हेलिक्स ही बना सकता है, या फिर कोई एक अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ शीट्स बना सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि पर्टिकुलर अमीनो एसिड के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करे, और किसी और के चांसेस हैं कि वो शीट्स फॉर्म करे, ठीक है। मतलब a particular amino acid has more chances to be found in a particular form, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सबका स्कोर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जिसका भी स्कोर हाईएस्ट होगा इन तीनों में से उसके चांसेस हैं कि वो उस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर वी आर प्रिडिक्टिंग, ठीक है, हम कोई एक्यूरेसी और प्रिसाइज रिजल्ट नहीं दे रहे हैं कि ये इसी में बनाएगा, ठीक है। तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसके चांसेस है कि ये हेलिक्स में फॉर्म करे, ठीक है। सो सपोज वी हैव इन टोटल 200 अमीनो एसिड सीक्वेंस, एंड 200 में से जो है आपके 120 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हेलिक्स बनाते हैं, ठीक है, और दिस हेलिक्स बनाते हैं, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलेनिन जो है उसी सीक्वेंस में वो 70 हैं, और 70 में से 40 जो हैं वो क्या बना रहे, जो 70 एलेनिन हैं उन 70 एलेनिन में से 40 एलेनिन जो हैं वो हेलिक्स बनाते हैं। तो क्या प्रोपेंसिटी होगी एलेनिन की टू बी फाउंड इन हेलिक्स, ठीक है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो है आपका वो 200 है, ठीक है, जिसमें से 120 अमीनो एसिड जो हैं वो हेलिक्स फॉर्म करते हैं, 70 अमीनो एसिड जो हैं वो एलेनिन हैं, और 40 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि एलेनिन हैं और हेलिक्स बनाते हैं। मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अल्फा से हेलिक्स के लिए, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी क्या होगा एलेनिन का टू बी फाउंड इन हेलिक्स, ये लो, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रोपेंसिटी
of any amino acid. I am taking the example of alanine just to understand the formula. So to calculate the propensity of alanine to be found in helix state, it will be x upon m divided by y upon n, where x is the total number of alanine to be found in helix, m is the total number of residues in helix form, y is the total number of alanine, and n is the total number of residues present in a given sequence. So if the propensity is equal to 1, then it can lie anywhere or in any form. If the propensity score is less than 1, then that particular amino acid has less chances to be found in helix. Or if the propensity score is greater than 1, then particular amino acid has more favored or more chances to be found in helix. Although the exact figure is 1.03 for helix, अगर आपका propensity score 1.03 से ज़्यादा है, it means that that particular amino acid has more chances to be found in helix form. Somehow there is the case where the propensity of helix and propensity of beta overlap with each other. Then in that case, what we will do, we will sum up the propensities of helices, amino acids and as well as of the beta sheets. जिसका भी समेशन जो है ज़्यादा होगा, मान लीजिए प्रोपेंसिटी हेलिक्स का जो समेशन है वो ज़्यादा है, इट मीन्स दैट वो हेलिक्स फॉर्म करेगा, अदरवाइज बीटा शीट फॉर्म करेगा. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोपेंसिटी स्कोर, चाओ एंड फास्टमैन concluded that there are few amino acids which are strong alpha formers or weak alpha formers and so on. ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ग्लूटामेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेलिक्स बनाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था, लेकिन इस ग्लूटामेट का बहुत ज़्यादा चांस है कि ये हेलिक्स फॉर्म करे. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा एनालिसिस, जिसमें उन्होंने 15 प्रोटीन्स लिए थे और कुछ एनालिसिस किया था और प्रोपेंसिटीज जो कैलकुलेट की, उन सभी के बेसिस पर चाओ एंड फास्टमैन ने कंक्लूड किया कि ग्लूटामेट, एलानिन एंड ल्यूसीन आर स्ट्रॉन्ग अल्फा फॉर्मर्स, और उन्होंने H अल्फा से इसको डिनोट किया, स्ट्रॉन्ग अल्फा फॉर्मर को. ठीक है, in the similar manner few amino acids are considered as alpha former only, and उन्होंने उसको small h और अल्फा से डिनोट किया. हिस्टीडिन, मिथ्योनिन, ग्लूटामिन, ट्रिप्टोफन, वेलिन एंड फिनाइल एलानिन are comes under the category of alpha former. Okay, in the similar manner lysine and leucine are weak alpha formers. Weak alpha formers are denoted by capital I alpha. Alpha indifferent are denoted by small I alpha. And in this category, aspargine, threonine, arginine and cysteine lie. I am not mentioning all the amino acids here. I am just taking few examples. Alpha breaker is represented by small b alpha. ठीक है, इसमें आपके ये 2 अमीनो एसिड्स आ रहे हैं. स्ट्रॉन्ग अल्फा ब्रेकर में आपके ये 2 अमीनो एसिड्स हैं. ठीक है, प्रोलीन एंड ग्लाइसिन. क्लियर? नाउ प्रोपेंसिटी कॉन्सेप्ट इज डन. Another concept on which the Chow-Fasman method is based is nucleation and termination of helix and beta sheets. So what is nucleation and termination? देखिए, अभी हम लोगों ने देख लिया है कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रॉन्गली अल्फा मेकर हैं और हेलिक्स मेकर हैं, और कुछ वीक हैं. ठीक है, तो अब क्या उन्होंने
न्यूक्लिएशन हेलिक्स दोनों के लिए ही है ये, हेलिक्स के लिए भी और शीट के लिए भी। अगर मैं हेलिक्स के लिए बात कर रही हूँ तो हम हेलिक्स न्यूक्लिएशन बोलेंगे उसको। अगर मैं शीट के लिए बात कर रही हूँ तब हम उसको बीटा शीट न्यूक्लिएशन एंड बीटा शीट टर्मिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग हेलिक्स न्यूक्लिएशन डिस्कस कर रहे हैं। हेलिक्स न्यूक्लिएशन, तो ये जो इन्होंने एल्गोरिदम बनाया और एक टूल बन गया है चाओ फासमैन का भी, वो क्या करता है कि जो भी हमारा सीक्वेंस है जिसका भी स्ट्रक्चर हमें प्रिडिक्ट करना है, या फिर 2D स्ट्रक्चर ना, या 2D स्ट्रक्चर में कौन से स्टेट में पर्टिकुलर अमीनो एसिड जाएगा ये चीज़ प्रिडिक्ट करना है, उस सीक्वेंस को लिया। उस सीक्वेंस को हम बोल रहे हैं क्वेरी सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस के बारे में हमें पता लगाना है। तो कुछ भी होगा वो, अभी मैं 1 2 3 4 5 लिख रही हूँ, दीज आर दी अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, हेलिक्स न्यूक्लिएशन वाला कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो कितनी भी लेंथ का आपका, कितने भी रेसिड्यूज का कोई भी सीक्वेंस हो, वो रैंडमली किन्हीं भी 6 रेसिड्यूज को पिक कर लेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रेसिड्यूज को 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रेसिड्यूज को पिक करेगा रैंडमली। अब इन 6 रेसिड्यूज में से अगर 4 रेसिड्यू ऐसे हैं जो हेलिक्स मेकर हैं, कोई भी 4 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हेलिक्स मेकर हैं, तो ये वाला जो 6 अमीनो एसिड का स्ट्रेच है ये हेलिक्स फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका हेलिक्स न्यूक्लिएशन। तो 6 इज द विंडो साइज फॉर हेलिक्स। विंडो साइज वो है कि हम कितने नंबर ऑफ रेसिड्यूज को ले रहे हैं इस वाली एल्गोरिदम में। ठीक है, तो वो कुछ भी ले सकता है, कोई भी 6 अमीनो एसिड का स्ट्रेच ले सकता है ये देखने के लिए कि वो हेलिक्स फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि इसने हेलिक्स फॉर्म किया, तो वो क्या करेगा, दोनों ही साइड में 1 बाय 1 एक्सटेंड करता जाएगा। अब और रेसिड्यूज को भी देखना है ना कि वो हेलिक्स बनाएगा या नहीं बनाएगा। मान लीजिए 4 कॉन्टिगुअस अमीनो एसिड जो हैं ऐसे आ जाते हैं जिनमें कोई भी हेलिक्स ब्रेकर होगा। अगर कोई भी हेलिक्स ब्रेकर होगा, 4 कॉन्टिन्यू आपके अमीनो एसिड ऐसे आ जाएं जो कि हेलिक्स ब्रेकर हैं, तो वहीं पर आपका हेलिक्स जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हेलिक्स टर्मिनेशन। क्लियर? इन दी सिमिलर मैनर बीटा शीट के लिए है। अब बीटा शीट में जो स्ट्रेच है वो है 5 रेसिड्यू का। हम लोग हेलिक्स में 6 रेसिड्यू का स्ट्रेच ले रहे थे, 6 रेसिड्यू का एक स्ट्रेच कंसीडर कर रहे थे। बीटा शीट्स में हम 5 अमीनो एसिड का एक स्ट्रेच लेते हैं। इट मीन्स द विंडो साइज फॉर बीटा शीट इज 5। सिमिलर पैटर्न है। अगर 5 में से, लेट मी टेक फ्रेश पेज, अमीनो एसिड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, कोई भी 5 अमीनो एसिड स्ट्रेच को उसने उठाया। अगर 5 में से 3 अमीनो एसिड बीटा मेकर हैं तो वो बीटा शीट बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? So this is the simple concept of Chow and Fasman method.